Well, जी सर। hmm. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is what we have done so far. Uh, Being responsive is we have to adapt different strategies. We will better, deal with when we start bootstrap and all. Then we start working the mobile first uh, design and all. Right now we are learning stuff, so I'm not really serious about being responsive and all. So we were here about, and then we had gone to the skills, and today on a skills side I want to have a circular animation, and we want to see how we actually have the circular animations, wherein we can have some kind of a circle here going. Say for example, it should say 80%, so that means the gap should be exactly 80%. Okay, maybe this is my bootstrap, and maybe for React I may say 60%. So 60% is gonna kind of a more than half, so it should be like that. Okay, the circle, and it should tell me that it's a React JS. And similarly for other guys, like we can have the Node.js, we can have the MongoDB, and many more. And but when it comes like this guy comes in, so we reload this. Like this guy comes, it gives some animation. Reload, so it gives an animation that filling up to the 85% to 75%. Last time we forgot to put up the percent. Okay, but after the class finishes, my kid told me that the 85 and 75 they are same. So actually percent lagana bhul gaye the. So 85 and 75%, or similarly here, it should come and animate. It should draw this arc kind of a thing. Maybe also there is some ball here. Okay, some glowing ball on a front. We can see if we got a time, we can do that also, no problem. So then it will grow and the ball also grow. Now this is simple. We have the SVG. Okay, in the SVG we can create a circle. A circle has its x value, its y value, and its radius. That means in a box, whatever the box is, इस बॉक्स के हिसाब से कितना एक्स आप जाएंगे और कितना वाई आप जाएंगे. फ़र्ज़ कीजिए आपने कहा x50 y50, तो यहाँ पे गया. फिर रेडिस आपने कहा कितना रेडिस का सर्कल बनेगा, से आपने कहा 50 का. और जो ये आप बना रहे हो ये आर्क, ठीक है ना, इट्स डन बाय द स्ट्रोक. ये स्ट्रोक से बनती है कि आपने किस कलर का दिया, स्ट्रोक कौन सी कलर की दिया आपने. देन देर इज़ व्हाट्स कॉल्ड स्ट्रोक का जो है दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक तो ऑफसेट एरे, एक तो हमारे पास होते हैं डैश एरे. यानी कि डैश एरे का मतलब होता है कि जिस तरह हम बॉर्डर बनाते हैं, सॉलिड बनाओगे, डैशर बनाओगे, इस तरह से ये जो स्ट्रोक है, यानी कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक क्या आपको डैशर बनानी है तो उसमें हम कह सकते हैं डैश एरे. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा डैश एरे 10 की, तो ये 10 की डैश बनाएगा और 10 की गैप रखेगा, इक्वल गैप रखेगा 10 पिक्सल्स की, एंड सो ऑन. अब जो ये एनिमेशन है इसमें हम क्या ट्रिक करेंगे, वो ये है कि हमारे पास जो ऑफसेट होता है इसका डैश का, वो गैप दिखाता है. और डैश अरे दरअसल हमारे पास डैशेस भी दिखाती हैं और गैप्स भी दिखाती हैं. अब अगर हमने फ़र्ज़ कीजिए इस सर्कल की अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियस 100 लिया, सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr. okay, that is 2 into 3.14 into 100, right? Somebody has come up, let me see. Okay, now what I am saying is, if we see the circumference here, now that is 2 into pi into r, 2 into 3.4 into 100, 100 into 3.4 is point and 2 0 गए काम से, and so 2 4 is 8, 2 1 is 2, 2 3 6, so 628 is the circumference of this circle. अब अगर मैं कहूँगा कि भाई साहब आप मुझे जो सर्कल है ना उसका आप जो डैश एरे है, स्ट्रोक डैश डैश एरे, यानी कि जो स्ट्रोक है उसका जो डैश एरे है वो आप रखो जनाब यही 6 2 जितना था, ये 6 to 8 चूँकि सर्कमफ्रेंस सर्कल की है, तो ये क्या करेगा, जैसे मैं अगर मैं कहूँगा अब डैश एरे बनाओ 10 की, तो ये 10 का डैश बनाएगा, 10 की गैप, 10 का डैश, 10 का. अगर मैं कहूँगा 50, तो ये 50 का आर्क मारेगा और 50 की गैप, एंड सो ऑन. अगर मैं अब 6 to 8 कहूँगा तो 6 to 8 का ये डैश बनाएगा,
यानी कि लाइन बनाएगा और 6 to 8 की गैप, क्योंकि 6 to 8 में तो ये पूरा सर्कल ही बनेगा। तो यानी कि अगर मैं इसको कहता हूँ डैश यानी 6 to 8 यानी कि फुल सर्कल बनेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुझे कितना सर्कल बनाना है यहाँ पे। अगर मेरे पास, मैं कहता हूँ मैंने 80% पढ़ा है बूटस्ट्रैप, सो व्हाट शुड बी, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सर्कल आई शुड हैव? जल्दी बताएं। 80%। 80%। तो 80% किसका होगा? वो 80% वो होगा जो फुल सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, उसका 80% मेरे को चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे रेडियस में दूंगा 50 का रेडियस दे रहा हूँ मैं, अगर रेडियस का 50 है, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस? ये पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी फिर? दैट इज 3.2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज 50, सो 248 212 236, ओके। एंड इसमें 3.14 का 2 पाई आर होता है ना, रेडियस इज दिस, सो दैट इज 6.28, एक ज़ीरो गया उसमें, सो इसमें, सो 628.8 इंटू 5 इज़ 40, 5 to 10 14, 1 कैरी, 5 6 30 31, तो 314 निकलेगा मुझे, 314। ये लिख लो कहीं पे, क्योंकि हमें ज़रूरत, हम सर्कल बनाएंगे इसी 50 रेडियस का। सो जिस होल जो मेरा ये सर्कल है, उसका जो आर्क है ये पूरी की पूरी वो 314 है, ठीक है, ओके। 314 पिक्सल्स, क्योंकि मैंने 50 का रेडियस लिया था, 2 पाई आर के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, वो 314 निकल रहा है। सो 80% ऑफ 314 मुझे रखनी है पहली वाली ये आर्क, जो कि 80% होगी, दैट इज 314 जो मेरा है उसका 80%, दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 100, सो ये ज़ीरो गया और ये ज़ीरो यहाँ पे जाएगा, दैट इज 31.4 इंटू 8, so 8 4 is 32, 8 1 is 8 11, 8 3 is 24 25, so 251.2 में, मतलब 251 पिक्सल्स मुझे रखना पड़ेगा डैश अरे। यानी कि अगर मैं 314 रख रहा हूँ डैश अरे, तो ये पूरे का पूरा सर्कल देगा। सो 80% ऑफ 314 होता है 251 पॉइंट समथिंग, सो 251 अगर मैं रखूँगा तो ये सर्कल पूरा नहीं बनेगा, ये गैप देगा कितनी, 80% ऑफ द सर्कमफ्रेंस। समझ में आ रही बात? तो यानी कि ये गैप जो बाकी खुलेगी वो 20% खुलेगी, क्योंकि अब इसको ये गैप भी देता, डैश एरे में देता आर्क 251 का और गैप 251 का, लेकिन मेरे पास उतनी गैप है नहीं, बाकी भी जो जितनी बची वो गैप में जाएगा, ठीक है। अब जो ऑफसेट है, डैश ऑफसेट जो है वो गैप ही दिखाएगा। अगर मैं उसको कहूँगा डैश ऑफसेट आपका जो है, जो स्ट्रोक का डैश ऑफसेट जो है, ठीक है ना, अगर मैं रखूँगा वो बराबर 0 के, तो उसका मतलब है कि पूरा का पूरा डैश ही दिखाओ, ये फुल डैश दिखाएगा, फुल यानी कि गैप ही दिखाएगा, यानी कि सर्कल दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको कहूँगा नहीं, अब मुझे आप दिखाओ पूरा सर्कल, पूरे सर्कल सर्कल कितनी है 314, या इस सूरत में मुझे 251 दिखाओ, तो अगर मैं इसको कहूँगा 251 दिखा, तो ये पूरी दिखाएगा जितनी 251 है इसकी आर्क, ठीक है, ये पूरी आर्क जितनी है उतनी दिखाएगा। अब अगर मैं इसको एनिमेशन में स्लो करके दिखाऊंगा, ये 0 से शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता दिखाएगा दिखाएगा दिखाएगा, चलता जाएगा। दिस इज़ व्हाट डैश ऑफसेट डज। अगर समझ नहीं आ रहा तो हम ये करेंगे, आपको समझ आएगा। ठीक हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि अब हम जाएंगे यहाँ पे, जो हमारा कोई मत आया था, कुछ ये हुआ था ना, ओके। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे हमारा ये जो था मैंने बंद किए थे, ये हो गया, ये हो गया हेडर, ये हो गया होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, हाँ स्किल्स। अभी स्किल्स में हमें हमारे पास है, जो स्किल्स का लेफ्ट कंटेनर है वो अभी हमने किया नहीं है ना, वो भी करना बाकी है। जो स्किल्स का राइट कंटेनर है उसमें हमने पहला देखा लाइन कंटेनर, वो जो एनिमेशन हमने की, मैं बंद कर, ये बंद ही है वैसे, ये मुझे इस पर काम नहीं करना। अब यहाँ पे मैं शुरू करूँगा, यानी कि ये जो डिव है ना, ये जो मेरा राइट कंटेनर है, ठीक है, ये बॉक्स आउटर बॉक्स है, उसके अंदर ही करूँगा। एक चीज़ मेरे उसमें ये लाइन रहेगी और दूसरी चीज़ सर्कल एनिमेशन रहेगी, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है जिसमें मैं कहूँगा सर्कल एनिमेशन, सर्कल प्रोग्रेस,
एनिमेशन, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ये जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है असल में। ये जैसे SVG हो गया, सर्कल हो गया, अब फिर एनिमेट कैसे करेंगे, फिर उसको ये कैसे चलाएंगे, ये ट्रिक्स वगैरह कैसे करेंगे, तो इससे आपका एक आइडिया बनेगा। फिर हम डिफरेंटली जोन में चले जाएंगे व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग रिएक्ट एंड ऑल। ओके, सो सर्कल एनिमेशन जो प्रोग्रेस बार है, इसमें हम पहले कंटेनर रखेंगे, है ना, हम हमेशा कंटेनर करते हैं। सो आई शुड से स्किल्स, क्योंकि स्किल है, सर्कल कंटेनर, इसमें मैंने कहा था स्किल लाइन कंटेनर। अब हमारे पास होगा स्किल्स सर्कल कंटेनर। तो पहले हम हमेशा कंटेनर ही बनाते हैं, है ना। तो ये बन गया कंटेनर आपका। अब मुझे डॉट कहना चाहिए था, कौन सी, आई शुड हैव सेड हियर डॉट सो दैट इट मेक्स अ div out of it. Damn. Container. Okay, now it created a div for me which is a circle container. ये मेरा कंटेनर रहेगा फुल मेरे सर्कल्स का, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा काम, मैं एक सर्कल बॉक्स बनाऊँगा। उस सर्कल बॉक्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मुझे बाद में मैं कह रहा हूँ वो जो मेरा जो गोल बॉल डॉट जो घूमेगा वो भी हो सकता है। तो पहले मैं वो बाद में बनाऊँगा, पहले मैं अपना SVG इसमें डालूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक SVG डालूँगा। और इनफैक्ट मुझे वो बॉल के लिए मैं रखूँगा डाल के, उसका मैं कहूँगा डॉट डॉट। हालांकि इस पर बाद में काम करेंगे। ये जो ये वाला डिव मेरा है ये डॉट है, ये क्या है, रासिबा हैज़ कम अप सो लेट, ठीक है, ये डॉट है। ये डॉट क्या आएगा, ये लास्ट में हमारे जो सर्कल के ऊपर मैं डॉट डालूंगा, उसके ऊपर अभी बोली जाओ। फिलहाल हम सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के लिए मैंने सर्कल बॉक्स बनाया, पहले सर्कल बॉक्स बनाना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। कि मैं कहूँगा डॉट सर्कल CIRCLE बॉक्स। अब ये सर्कल बॉक्स बन गया, इसके अंदर ही सारी चीज़ें बनेंगी। और ये पहली चीज़ उसमें होगी ये डॉट, कमांड X, इसके ऊपर बाद में काम करेंगे। पहले हमारा सर्कल बनना चाहिए, उसके बाद हम डॉट की फिक्र करेंगे, ठीक है। और हमारा होगा SVG, क्या होगा हमारा SVG, ये मेरा SVG है। इस SVG के अंदर मैं अपना एक सर्कल और टेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है। जो 80% वाला टेक्स्ट है और जो सर्कल है वो इस SVG के अंदर बनेगा। लेकिन SVG की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो SVG की है, मैं इसका क्लास दूंगा कि इस SVG का हम क्लास दे सकते हैं कि भाई ये स्किल सर्कल है। इफ़ आई वांट टू लेटर ऑन टारगेट दैट, ओके। इसके हम हाइट दे सकते हैं, इसके हम विड्थ दे सकते हैं, SVG की कितनी है वो यहाँ पे height for example is equal to 150, okay, and width, width is equal to 150। मैंने इसकी हाइट दे दी, मैंने इसका विड्थ दे दिया, मैंने इसको क्लास दे दिया। और SVG टैग क्लोज यहाँ पर है, ये SVG टैग क्लोज है, और फिर SVG का क्लोजिंग टैग ये है खुद, ठीक है। और इस क्लोजिंग टैग के बाद मैं एक सर्कल बनाऊंगा। आई वुड लाइक टू मेक ए सर्कल। मैंने कहा सर्कल बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं कि आप कहाँ बनाना चाहते हो, उसका X क्या है, उसका Y क्या है, और उसका रेडियस क्या है, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई साहब मेरे पास एक सर्कल चाहिए मेरे को, ठीक है, एक सर्कल मुझे चाहिए। इस सर्कल के भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये अंदर लिखना है, इसमें जो इसका जो ये क्लोजिंग है उसके अंदर हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, उसका CX क्या है, मैं कहूँगा CX आप 75 पे रख दो, 75 पिक्सल्स इनफैक्ट। और उसका जो CY है वो आप ना 75 पे रख दो, यानी कि 75 में रख रहा हूँ फिलहाल, बाद में देखेंगे एडजस्ट कर सकते हैं। और रेडियस मैंने कहा था आपसे कि प्रॉमिस कहते हैं कि रेडियस हम रखेंगे 50 टाइम क्या हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 50 का रेडियस देंगे, ठीक है, ओके। अभी ये नहीं बनेगा क्योंकि अभी हमने स्ट्रोक नहीं किया, स्ट्रोक का कलर जो कि सर्कमफ्रेंस बनाएगा, स्ट्रोक का कलर दूंगा मैं कहूँगा स्ट्रोक का कलर भाई साहब वाइट देना, वाइट कलर का कर दो सर्कल, ठीक है। और इसमें फिल कलर जो भी है आप करना चाहोगे आप फिल कलर कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम देखेंगे कि बना कुछ या नहीं बना। ये एक सर्कल बन गया, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर का एक सर्कल बन गया, ठीक है ना। उसमें ये जो हम आपका जो बॉक्स है उसका अगर हम बॉक्स को ये कहेंगे कि आप
आपका जो बॉक्स होगा, जो सर्कल बॉक्स है, उसके अंदर फ़िलहाल एक सर्कल बना, ठीक, और एक ये डॉट डिव है, इसमें तो कोई डायमेंशंस ही नहीं है अभी, तो ये कुछ जगह पकड़ेगा नहीं क्योंकि हमने इसको अभी डायमेंशंस नहीं दिए। इसमें एसवीजी में एक सर्कल बनाया हमने जिसका CY 75 है, रेडियस 50 है, स्ट्रोक वाइट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिल, जो इसका फिल कलर है, मैं कहूँगा फिल नन, आई डोंट वांट फिल, आई डोंट वांट इट, मुझे फिल कलर नहीं चाहिए इसका, तो मैं कहूँगा फिल नन, आई वांट ओनली द बाउंड्री, ठीक है। अब जो बाउंड्री है दैट इज आई टोल्ड यू कि डैश एरे, सो व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक डैश एरे। जो स्ट्रोक डैश एरे, मगर वो स्टाइल में लिखना पड़ेगा, किसमें, बिकॉज ये यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट नहीं है, ये स्टाइल है, तो इसको या तो CSS में लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल मैं इसको यहीं पे लिखूंगा कि स्ट्रोक जो है डैश, देखिए डैश ऑफसेट डैश एरे, मैं कहता हूँ डैश एरे, ठीक है। डैश एरे अगर मैं दूंगा, कितना कैलकुलेट किया था हमने, याद है वो कुछ, पहले मैंने कहा अगर 50 का है हमारे पास है, 50 का अगर रेडियस है, तो इस हिसाब से मैंने आपको कहा था ना, याद रखना, रखा याद कुछ, 251 पिक्सल 251 पिक्सल आ रहा था 80% या कि फुल कितना आ रहा था, 314 314 आ रहा था टोटल। तो अगर हम 314 कहेंगे तो ये फुल देगा, सर्कल दिया ना इसने फुल। अगर मैं कहूँगा कितना 80% कितना होता है, 251। सो 251 जब दूंगा मैं, तो 251 का डैश एंड 251 की गैप देता है, मगर गैप चूंकि हमारे पास उतनी है नहीं, तो जितना बचेगा उतना देगा आप गैप, ठीक हो गया, आ रहा है समझ। तो व्हाट इज डैश एरे डूइंग हियर, जो डैश एरे है वो बता रहा है कितना आपका ये स्ट्रोक देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा मुझे दे दो डैश एरे 2, सो व्हाट विल डू, ये दो का डैश दे रहा है, 2 की गैप, ये 2 बहुत कम हो गया, मैं 20 कर दूंगा, ठीक है। सो ये अब 20 का डैश दे रहा है, 20 की गैप, 20 का डैश 20 की गैप, है ना। मैं कहूँगा भाई 50 का डैश दे दो मुझे, सो इट विल क्रिएट 50 का डैश एंड 50 की गैप, मगर लास्ट में ज़रूरी नहीं है जहाँ से शुरू करेगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करता है, फिर ये लास्ट में जो बचेगी ना गैप वो एडजस्ट कर लेगा। अगर मैं कहूँगा 100 की, अब 100 का डैश, 100 देखो 100 का डैश, 100 की गैप, 100 का डैश दिया इसने शायद, या शायद यहाँ से शुरू किया होगा, शायद ये 100 यहाँ से शुरू किया होगा इसने, क्योंकि 100 का इसने ये लाइन दे दी, फिर गैप दे दी, फिर 100 की डैश, फिर बचा जो वो गया गैप में, तो गैप छोटी होगी। लेकिन अब अगर मैं इसको पूरा ही 314 दे रहा हूँ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो ये पूरे का डैश, उसके बाद ये पूरे की गैप देता, लेकिन वो है नहीं, जगह ही नहीं है, तो वो नहीं देगा। अब अगर आप गैप ही दिखाना चाहते हो, अगर आप गैप ही दिखाना चाहते हो, देन वी हैव द डैश ऑफसेट। अब मैं उसी से एनिमेशन लाऊंगा, क्योंकि डैश ऑफसेट जो मेरा है वो अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो वो कुछ नहीं दिखाएगा, और अगर ये जो पूरा मेरी जितनी मुझे दिखाना है सर्कमफ्रेंस के 314, तो फिर वो 300 फुल दिखाएगा। अब अगर मैं उसमें टाइम लगाता हूँ 0 से, ये आएगा ना आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई, जैसे मैंने इसकी पहले विड्थ 0 रखी, फिर इसकी खुद की विड्थ बढ़ गई जितनी बढ़नी थी। इसी तरीके से मैं इसकी सर्कमफ्रेंस में पहले मैं क्या करूँगा काम, मैं इसको दिखाऊंगा 0 डैश में गैप दिखाऊंगा, तो उसका मतलब है कि 0 मीन्स बिल्कुल गैप दिखाओ आप। जब मैंने फुल ही गैप दिखाई 314 की, तो कुछ नहीं दिखाएगा सर्कल में। फिर मैंने आगे जो है 100% में 50% 0% में रखूँगा 0 फॉर एग्जांपल, 100% में रखूँगा मैं पूरा 340। अब उसमें टाइम लगाऊंगा 2 सेकंड्स पर, ये 2 सेकंड्स में आएगा ना, ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के आएगा मार के। अब मुझे इसमें 314 नहीं, कितना करना है 251 राइट प्रोबेबली, ठीक है ना। अब 251 का ये बन गया सर्कल। अभी एनिमेशन के बाद में करेंगे ऑफसेट से, सिंपल है। अब ये तो हो गया सर्कल मेरा, ठीक है ना। लेकिन सर्कल के अंदर मुझे क्या दिखाना है कि भाई 80%, वो SVG का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ SVG। वी कैन मेक इन SVG आवर फिगर्स एंड ऑल्सो द टेक्स्ट। सो इन द SVG आई एम मेकिंग ए टेक्स्ट टैग, ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसका आईडी दे दो, इसका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा टेक्स्ट 0 फॉर एग्जांपल, मुझे बाकी को भी करूँगा कॉपी पेस्ट, फिर आईडी हो जाता है प्रॉब्लम,
जिसने परसों हो गया था उसमें, क्योंकि मैं अब करूँगा ना अगर मुझे 3-4 सर्कल बनाने हैं, जो मैंने बनाया मैं सारा कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन फिर आईडी रहेगा ना उनका भी सेम, इसलिए मैंने इसका टेक्स्ट 0 किया, उनका मैं टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 कर दूंगा। ठीक है, आईडी हो गया। और क्या हो सकता है इसका, इसका एक्स एंड वाई आप कहाँ लगाना चाहते हो इसको, वो देखना पड़ेगा हमें कहाँ, क्योंकि अगर 75 वाई पे आ गया है, ये दरअसल जो बॉक्स आपका है, बॉक्स 150 का था शायद, है ना, SVG हमारा 150 का है। ठीक है, तो 75 यानी कि 75 और 50 का रेडियस है इसको है, यानी कि इसमें हिसाब अगर करेंगे हम, क्योंकि हमारा 60% जो है ना, 80% जो है ना, वो यहाँ पे बीच में आना चाहिए। अब चूंकि जो इस बीच के लिए क्या देखें, ये इसका रेडियस है, ये 50 का रेडियस तो 50 है। सो ऑल रेडिए RADII इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, वो तो सेम ही होता है ना, तो 50 ये 50 है। और 75 एक्सेस मैंने रखा, 75 इसका एक्स पोजिशन एंड 75 वाई पोजिशन, यानी कि जो वाई पोजिशन है इसकी 75 है। मैं ये रेड से जो बनाऊंगा मैं, ये बाकी ये हो गया 50 का रेडियस और बाकी बचा 25, ये 50 का रेडियस बाकी बचा 25। ये जो मैंने मैंने एरिया रखा था आपके SVG का, इस SVG के अंदर जो 150 का था, उसमें मैंने ये 150 का था खुद, ये तो लंबा है खुद, लेकिन इसके 75 वाई पे और 75 एक्स पे मैंने सर्कल बनाया ऑफ रेडियस 50, है ना, 75 रखा ना। तो उसका मतलब है कि जो 0 है उससे लेकर यहाँ पे 50 ये है और 125 यहाँ पर है, इसके 25 यहाँ पे। अब मुझे अगर यहाँ पे अराउंड यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना बनाऊँ कौन 80%, 80 लिखूँ मैं यहाँ पे अराउंड। सो इट शुड बी अराउंड, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, ये 75 है ना ऐसे, और ये यहाँ से 75 है, तो लेफ़्ट तो मुझे यहाँ पे करना चाहिए और राइट थोड़ा नीचे करना चाहिए इसके, है ना, या तो मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ, बस में आई। तो उस हिसाब से हम कहाँ पे रखेंगे इसको, बता मुझे। यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है इसका आईडी हमारा 0 आ गया। अब मुझे बता इसका आईडी में रखा, इसका एक्स क्या दूंगा मैं और इसका वाई क्या दूंगा मैं। इसमें आता है CX CY, इसमें सीधे XY आता है। एक्स मीन्स इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में जो सेंटर है, एक तो रेडियस 50 है और 25, क्योंकि कुल 75 एक्स पर है, ये सर्कल खुद बना है 75 एक्स पे, यानी कि जो SVG की पोजीशन है उसके 75 एक्स पे बना है, यानी कि जो SVG है उस हिसाब से मुझे आप बताओ ना यार, जो हमारा SVG लगा है वो 150 का लगा है, वो जितना भी बड़ा कितना बड़ा है, लेकिन मेरा जो ये सर्कल बना है ये 75 एक्स पे और 75 वाई पे बना है, इसका डायमेंशन है, और खुद 50 का रेडियस था, इसलिए इसने आर्क बनाया ऐसे। और ये आधी क्यों बनाई, क्योंकि 80% ऑफ फुल सर्कमफ्रेंस मैंने कहा। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 80 लगाऊँ, मैं इस सेंटर के बाद में यहाँ से मत लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ना यहाँ से थोड़ा सा, मैं लगाऊंगा ना इधर से और थोड़ा नीचे, क्योंकि मैं अगर मैं यहाँ पे 75 करूँगा तो फिर वो पूरा इधर लगाएगा। अगर 75 करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका रख रहा हूँ 75 वो सेंटर पे आएगा, लेकिन सेंटर पे उसका कॉर्नर होगा 75, क्योंकि 75 इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, है ना। 75 एक्स 75 वाई वो आपका सर्कल है। और लिखना क्या है इसमें, वो तो बताएं आप इसको, 80%, यहाँ पे लिखें 80। ठीक है, देखो ये बराबर आ गया जहाँ आपका सर्कल था। इस हिसाब से मुझे बताओ ना आप लोग कहाँ बनाएंगे। देखो जो मेरा SVG है वो 150 का है, लेकिन 75 एक्स और 75 वाई पे मैंने ये बनाया, वो ये पोजीशन है, और वहाँ से मैंने शुरू किया 80 लिखना। तो 80 जहाँ शुरू होता है वो आपका असल में यहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ 80 शुरू होता है वो 75 अगर आपने उसका भी टेक्स्ट का भी बना 75 तो वहाँ से शुरू करके वो इस साइड लिखेगा, लेकिन ये 80 होना चाहिए थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। अब बताओ थोड़ा इधर मतलब क्या है, अगर ये 75 है तो मुझे कितना रखना चाहिए, 60 या 65 है ना। सो आई शुड पुट माई एक्स एज 65 और 60, लेट इट बी 60, क्योंकि 65 मुझे लगता है कम हो जाएगा, तो 60 आ गया इधर थोड़ा सा। लेकिन अब जो मेरा y है वो नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, नीचे, थोड़ा नीचे होना चाहिए ना, 80 पे रखते हैं। तो आ गया
तकरीबन सेंटर पे आ गया, ठीक है ना। देखो जो 75 जो है आपका है, देखो अगर आपको पूरा देखना ना कि कहाँ पे इसका सेंटर है, 75 यहाँ डॉट डालो एक। अब देखो डॉट, जहाँ पे डॉट है ना, बस उसके थोड़ा सा मतलब यही सेंटर है ना। तो यानी कि 80 इधर आना चाहिए आपको। इसलिए हमने क्या कहा कि आप क्या करो काम, हाँ जी, x60 रखो, इसको 80 रख दो, ठीक है, तकरीबन सेंटर पे आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा राइट और करेंगे, 65 आप ठीक बता रहे थे, ठीक है, क्योंकि बाद में फॉन्ट इंक्रीज़ करेंगे तो फिर वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट इंक्रीज़ करोगे तैरना ज़्यादा दुख नहीं थे। फिलहाल तो ठीक 65 आपने ठीक कहा, ओके, बन गया 80 आपका। अब हमारा जो ये किस्सा है जो आपने ये बनाया, और इसके नीचे आना चाहिए कि ये 80% है क्या, बूट स्ट्रैप, वो आना चाहिए नीचे यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको, जब मैं SVG मेरा ख़त्म होगा उसके बाद मैं एक H4 टैग लगाऊंगा और उसमें मैं कहूँगा बूट स्ट्रैप, ठीक हो गया। अब बूट स्ट्रैप, अब इस वक्त तो बूट स्ट्रैप आ गया ये फ़िलहाल। वैसे तो ये नहीं आना चाहिए, ऐसे था, पता नहीं कैसे खुद ही आ गया ऐसे। असमझते लगोम ये फ्लैक्स कॉलम लगोम नतमा ये कैसे उनके कंस्टिट्यूशन फ्लैक्स लगोमती है शायद, कि हमने फ्लैक्स वो लगाया नहीं है। हमें करना चाहिए ना वो फ्लैक्स, कौन करना चाहिए फ्लैक्स, गज ना एडजस्ट ना पत कर कंटेनर पज कर फ्लैक्स तो हुई तेल बाकिन पे खुश तेल सह मान तेल तिम स्टाइल करें। बाद में हम ग्रिड पढ़ेंगे, उससे हमें और भी फ्लूइड जो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस है उसमें ग्रिड बड़ा बेटर रहता है करने के लिए। इसको भी फ्लैक्स रखेंगे, ठीक है। जब हम फ्लैक्स रखेंगे तो ये रोज में चला जाएगा ना, तो इसको अब कॉलम में करना पड़ेगा, लेकिन ये अरेंज होगा क्योंकि जब मैं बाकी, प्लीज़ कीप द माइक ऑफ, क्योंकि जब मैं बाकी सर्कल्स बनाऊंगा तो उसको मुझे स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रॉपरली रहेगा, ठीक है। फिलहाल मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए इसका, ये मैं बॉर्डर हटा दूंगा अब, ओके, क्योंकि मुझे 4 सर्कल्स बनाने हैं तो थोड़ा सा ये जगह पकड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं इनको क्या करूँगा, जो मैंने ये SVG यहाँ पे बनाया है ना, ये बूट स्ट्रैप लेके, ओके, अब मुझे 4 ऐसे ही बनाने, कंट्रोल ऑप्शन डाउन 2 3 4, ठीक है। अब IDs का पंगा पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको 0 रखा था, दूसरे बंदे को 1 रखेंगे। पहले देखो मैं कहाँ से शुरू है, ये पहला वाला बंदा है, सर्कल बॉक्स फ्लेक्स डॉट डाला हमने, क्लास SVG क्लास स्किल्स सर्कल, ये यही पहला है ना, ठीक है। इसका हमने 0 रखा तो इसका हम रखेंगे 1, बाकी सेम डायमेंशंस वगैरह सेम रहेंगे, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 1 रखना है। और इसमें फ़र्ज़ की कितने % आपको है, जितने % आप चाहते हो इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मैंने कहा 80%, इसमें कितना % आप चाहते हो वो आप लिख लो, और कौन सी लैंग्वेज है, जैसे ये भाई साहब हमारे पास हम कहेंगे 75% है फॉर एग्ज़ाम्पल, और लैंग्वेज कौन सी है, बूटस्ट्रैप अगर वो थी तो ये कौन सी है, मान लीजिए ये क्या लिखेंगे, कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे जो पढ़नी है आपको, अरे रिएक्ट JS कर दो, ठीक है। ये वाला बंदा जो है इसको लिखेंगे अब टू टेक्स्ट टू, और ये कौन सा है, नोड, फॉर एग्जांपल नोड JS कर दो, ठीक है ना, ओके। और भी एक है शायद, अच्छा ये वाला जो है लास्ट वाला, इसको 4 कर देंगे, ओके। और MongoDB रख लो इसको नाम, अब जितना भी 80% फॉर एग्जाम्पल हो गया तो चलो 80% रखते हैं। फिर हम देखते हैं, क्योंकि अब ये बिकॉज ये फ्लैक्स बॉक्स है तो इनको खुद ही करेगा, लेकिन अब मुझे हम ये इनको फिर कॉलम में करना है, नीचे करना है, और स्टाइल अप करना है, फिर एनिमेट करना है, ठीक है। फिलहाल इतना तो हमारे पास है। नाउ वी शुड गो टू द स्क्रिप्ट, नॉट स्क्रिप्ट, स्टाइल। स्टाइल में जो हम करेंगे काम,
किस पे काम करेंगे पहले बताओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भाई साहब, ये शुरू हो गया हमारा कौन सा, ये शुरू हो गया कमांड दिस, ये शुरू हो गया हमारा सर्कल, स्किल्स का जो राइट है उसका सर्कल है ना, जो ये जो है स्किल का जो राइट है उसमें जो है सर्कल प्रोग्रेस, कैपिटल में लिखना चाहिए, कोई मसला नहीं। अब मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। एनीवेज दिस इज दिस। नाउ इसमें पहला बंदा किसको पकड़ेंगे हम, डॉट स्किल्स में हमारे पास, हाँ जल्दी बताएं, सर्कल पहला कौन होता है, मतलब कंटेनर है ना, कंटेनर ही है ना, उसकी विड्थ हम रखेंगे जो पेरेंट की है पूरी पूरी ले लो, जितनी भी विड्थ पापा की है उतना सारा ले लो, ठीक है। अच्छा और बताओ इसका पापा कौन है, इसका राइट 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 है ना, राइट कंटेनर, राइट कंटेनर फुल है। अब दूसरा कौन है हमारे पास, सर्कल बॉक्स है शायद, है ना, अब है ना सर्कल बॉक्स ये जिसके अंदर हमने ये बिठाए हैं एसवीजी वगैरह, है ना। पता नहीं मैं शायद गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट एसवीजीज को रुकाते हैं, पहले एसवीजीज को हम छोड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ सर्कल बॉक्स जो मेरा है वो उसमें एसवीजी रहना चाहिए ना। जो ये सर्कल बॉक्स है यहाँ पे, एक मिनट, जो ये सर्कल बॉक्स है ठीक है ना, एसवीजी किस में रहना चाहिए, वो इससे बाहर रहना चाहिए, दूसरे की वो सर्कल बॉक्स में ही रहने चाहिए, सर्कल बॉक्स में, सर्कल बॉक्स, क्योंकि फिर हमें इसमें है ना ये डॉट और स्किल और ये बूटस्ट्रैप, इनका मैं कॉलम कर दूंगा ना, और बाकी जो है वो इस सर्कल कंटेनर में रहेंगे, वो एज अ रो रहेंगे। तो यानी कि मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये जो डिव है ना ये बंद करना है मुझे, जो वो ये सर्कल बॉक्स का, ठीक है ना, ये जो सर्कल बॉक्स है कमांड सी में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये बंद करूँगा पहले डिव, ओके आई विल क्लोज द डिव हियर, कमांड वी, और ये जो एसवीजी जो है उसके बाद रिएक्ट लिखा मैंने, यहाँ डिव बंद कर लेंगे, और कमांड वी इसका अपना सर्कल बॉक्स रखेंगे, और यहाँ जो एसवीजी है यहाँ पे डिव बंद कर लेंगे, ओके। और यहाँ कमांड वी जो है तो उसका कहाँ पे बंद करना है, मोंगोडीबी पे, ठीक है। जो एब्सेंट रहते हैं भाई साहब उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज एब्सेंट होने से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ ये ड्यू एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे ख्याल से फिर, है ना, मुझे कितना गड़बड़ा है इससे, ये ड्यू ये हो गया, ये गो ये मिक ड्यू, ये गो ये मिक, ये इसमें ड्यू ख़त्म हो गया है, पता नहीं कैसे, ड्यू यहाँ पे ड्यू लिखो, ओके मेरे ख्याल ठीक है, ओके। अब हमारे ऐसे आ गए, ये जो सर्कल है इसमें जो टेक्स्ट है ये एसवीजी का सर्कल है और उसका टेक्स्ट है, दोनों एसवीजी में है, और H5 बूटस्ट्रैप है, और ये तीनों चीज़ें सर्कल बॉक्स में है, ये सर्कल बॉक्स में है ये तीन चीज़ें, ठीक है। इसका अपना सर्कल बॉक्स है, इसका भी अपना सर्कल बॉक्स है, इसका अपना सर्कल बॉक्स है, बंदा स्क्रीन से बाहर गया, और ये खुद सर्कल कंटेनर बॉक्स के अंदर है, ठीक है। सर्कल कंटेनर बॉक्स जो मेरा है वो फ्लेक्स है, उसका रो है, इसलिए इसने सबको रो में बिठाया, इसने ये बॉक्स, इसके लिए आइटम नंबर 1 ये है, इसका आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4 है, इसके पास 4 आइटम थे, चारों आइटम्स को इसने रो में बिठा दिया, बिकॉज इट इज़ अ फ्लेक्स, वो पता ही है। और ये वाला जो बंदा है सर्कल बॉक्स भी हमने फ्लेक्स बनाया, उसमें 3 चीज़ें हैं, आइटम 1, 2, 3, और इनफैक्ट ये 1, 2 जो है ये एक ही आइटम है, ये अक्सर में एसवीजी है, ठीक है। इसमें इसके लिए 2 ही आइटम्स है आउटर बॉक्स के लिए, तो एक तो एसवीजी है विद टेक्स्ट एंड दिस बूटस्ट्रैप, इसने इन दोनों को बिठाया किस में, रो में। इस तरह से ये दूसरा बॉक्स है उसके लिए एसवीजी है और ये बॉक्स उनको बिठाया रो में, लेकिन अब हम इसका बोलेंगे कि भाई साहब नहीं आप तो रो नहीं, आप कॉलम कर दो ताकि ये बंदा नीचे आ जाए, ये बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ जाए,
और ये नोड जेएस यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जगह आ जाएगी, वो जो इधर था पता नहीं क्या मोंगोडीबी फॉरएप्स वो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जो मेरा ये वाला बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है पहले में जो 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 आउटर बंदा था उसको मैंने सिर्फ एक काम कहा कि तू तू पूरी जगह ले, जितनी विड्थ है तू पूरी ले, ठीक है। अब ये ओवरफ्लो कर रहा है, जो ये बंदा है ये अपनी विड्थ से हट रहा है, क्योंकि उसकी ये जो ये बंदा है ना, ये इसकी विड्थ यहीं तक होगी, जो जहाँ तक ग्रीन लाइन है, इससे बाहर इसकी विड्थ नहीं है। अब लेकिन ये फैल गया तो ये ओवरफ्लो, अगर मैं ओवरफ्लो हेडिंग करूँगा तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अब मैं पहले काम क्या करूँगा, इस जो मेरा ये वाला बंदा है इनको बोलूँगा मैं कि भाई साहब आप अपना क्या कर लो, आप अपना शाबाश जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रोने कॉलम कर दो, ठीक है ना। तो जो मेरा स्टाइल होगा उसमें किसको पकड़ूंगा मैं, बताओ जल्दी, शाबाश, सर्कल, हाँ जी, डॉट सर्कल बॉक्स। अरे यार अभी तो समझा है इतना मैंने, किधर हो आप लोग, ये है ना सर्कल बॉक्स। एक मिनट ये कर रहे हैं। देखो जो सर्कल बॉक्स है इसने पकड़ा हुआ है एक इस डिव को जिसमें डॉट है, वो डॉट की बात में करेंगे। एक तो सिकल ये एसवीजी है, एसवीजी में आपका सर्कल बना हुआ है और टेक्स्ट है। अगर इसको खोलेंगे एसवीजी को, इसमें एक तो सर्कल बना है और एक ये टेक्स्ट है जिसमें वो 80% वाला किस्सा है, और आपका बूट स्ट्रैप जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब इनको रो वाइज किया क्योंकि ये फ्लेक्स है, क्योंकि ये फ्लेक्स है तो इसने अपने आइटम्स को, इसके पास कितने आइटम्स है सर्कल बॉक्स के पास, एक तो इसके पास ये वाला बंदा है, ये तो अभी काम का है नहीं, ये कोई स्पेस नहीं ले रहा है, अभी इसको छोड़ ही दो। एक तो एसवीजी है और एक ये बंदा है, इसने इनको रो में रखा, इसलिए इसने इनको साइड में रखा रो में, है ना। अब मैं अगर इसका बोलूँगा नहीं तू इसको कॉलम कर दे, मैं कहूँगा भाई फ्लेक्स डायरेक्शन तेरा कॉलम होना चाहिए, न कि ये होना चाहिए फ्लेक्स। अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको बिल्कुल आना चाहिए पका पका, ठीक है। अब इसमें गुंजाइश नहीं होना चाहिए डाउट्स की कि हम क्या कर रहे हैं। कॉलम, तो जो ही मैंने कॉलम कहा तो इसने अपना जो ये रो स्ट्रक्चर था, ये सर्कल बॉक्स है ना, जो सर्कल बॉक्स में ये वाला सर्कल बॉक्स है, इसने अपनी चीज़ों को आप कॉलम की डायरेक्शन में रखा। इसमें क्या चीज़ें हैं, एसवीजी है और आपका एक टेक्स्ट है H5 वाला, इसने अपने कॉलम में रखा, इसने भी कॉलम में रखा, इसने भी कॉलम रखा, सब ने कॉलम में रखा, और खुद ये बैठे हैं इस डब्बे में जो सर्कल कंटेनर है, ठीक है। और उसको मैंने फ्लेक्स किया है, इसलिए इसने खुद, क्योंकि ये बाहर वाला बॉक्स जो है ना वो फ्लेक्स है, ये वाला बॉक्स, इसलिए इसने जो आइटम्स में थे आइटम 1 2 3 4 इनको अच्छे से स्पेस दी बीच में वगैरह, इनको सेंटर कर दिया है, अलाइन सेंटर, हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया है, और इन्हें अच्छे से, इसको मुझे को करने की ज़रूरत नहीं है, इसने प्रॉपर स्पेसिंग दी है, वो इसने खुद दे दी, मुझे उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि इसको सिर्फ जो आउटर कंटेनर है उसको मैंने बोला कि आउटर कंटेनर, ये वाला जो आउटर कंटेनर है सिकल सर्कल, उसको मैंने कहा कि विड्थ 100%, और वो खुद जो है वो फ्लेक्स है, यानी कि जो आउटर कंटेनर है ये वाला वो खुद फ्लेक्स है, ठीक है ना। ये आउटर कंटेनर है जिसमें सारा बैठा है ये किस्सा, ठीक। और जो सर्कल बॉक्स जो मेन आइटम है सर्कल बॉक्स, उसके अंदर हमारे पास स्किल एसवीजी है, सर्कल है और टेक्स्ट है और जो बूट स्ट्रैप है, इसको मैंने लेकिन चेंज किया, उसको मैंने कहा तू खुद तो फ्लेक्स बन, यानी कि रो में बिठा चीज़ों को, मतलब अलाइन सेंटर वेंटर वो सब चलेगा जो कि हमारा फ्लेक्स बोलता है, जो हमने माई स्ट्रैप में किया था, यहाँ पे फ्लेक्स, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, सेंटर वेंटर किया था ना सारा वो किया था, लेकिन ये वाली चीज़ मेरे को नहीं चाहिए फ्लेक्स डायरेक्शन, सिर्फ तो ये ओवरराइड कर ले। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको बोला कि नहीं भाई साहब आप ये इसको कॉलम बना दो, ठीक है, ठीक है। ओके अब इस सर्कल बॉक्स में जो डॉट सर्कल बॉक्स है उसमें जो एसवीजी है सर्कल जो क्या है बॉक्स, उसमें जो एसवीजी है उसका, तो वैसे तो मैंने उसका विड्थ एंड उसकी हम विड्थ 150 पिक्सल और उसकी हाइट वो देंगे 150 पिक्सल, ठीक है। इनकी विड्थ एंड हाइट देंगे 150 पिक्सल, वो वैसे मैंने दी थी ऑलरेडी वहाँ पे शायद, है ना, सो इट डजंट मैटर हियर, वो तो मैंने दी थी ना वहाँ पे, वो एसवीजी में पहले ही दी थी मैंने यहाँ पे, है ना, इट डजंट मैटर हियर, सो इट विल हैव नो इफेक्ट व्हाटसोएवर, एनीवे सो लीव इट, इट वाज रिडंडेंट बट लीव इट फॉर अ वाइल। अच्छा अब किसको पकड़ेंगे, जो मेन चीज़ है वो कौन है, सर्कल,
जो मेन चीज़ कौन है, एसवीजी के अंदर जो सर्कल है। तो मैं जो कहूँगा कि जो डॉट सर्कल बॉक्स है उसमें जो एसवीजी है उसमें जो सर्कल है, या सीधे कहूँगा जो सर्कल है, क्योंकि एसवीजी में जो कहीं पर भी जो मैं डिसेंडेंट क्लास लगा रहा हूँ, स्पेस लगा रहा हूँ, उसका मतलब है कि कहीं पर भी किसी भी लेवल में जो बंदा सर्कल बैठा है, ठीक है, उसका मोटाई जो है ना, स्ट्रोक विड्थ मुझे पसंद नहीं आ रही है। ये जो मोटाई इसकी है ना, ये मोटाई, ये जो सफ़ेदी जो है, ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। इसको थोड़ा सा आप मोटा कर दो, 10 पिक्सल का कर दो, ठीक है, तो ताकि मोटा दिखे। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा दिख रहा है। ओके, इसकी पोजीशन रिलेटिव क्यों, मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव बनाऊंगा अभी, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस पर वो डॉट करना है तो वो रिलेटिव होना चाहिए, तो इसी पे घूमना चाहिए। फिर अभी मैं वो नहीं करूँगा, या मैं कर लूँगा फ़िलहाल, तो बाद में बताऊँगा क्या करेंगे इसमें। पोजीशन इसकी रिलेटिव कर दो, ताकि जो इसका चाइल्ड बनाऊँगा मैं, ठीक है, वो डॉट जो मैंने बनाया था। अब आप कहोगे कि क्यों मैं सर्कल का बिफोर आफ्टर करके वो क्यों ना करूँ, तो वो सर्कल एलिमेंट नहीं है, तो जिसका आप जैसे आप किसी एलिमेंट का जो आप कर रहे हो ना बिफोर आफ्टर, वो सर्कल पे नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके लिए इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा डिव बना दिया है डॉट के लिए। वो बाद में करूँगा, फिलहाल आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो स्ट्रोक है उसका कलर कैसे चाहिए आपको, आपने वाइट किया था फिलहाल, क्योंकि मैं डिफरेंट कलर्स के बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जो ये कलर है इसका डिफरेंट, इसका हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बनाना चाहते हैं। फिलहाल मैं जो स्ट्रोक का कलर यहाँ पे है, मैं कहूँगा भाई जो आपका स्ट्रोक है ना वो खुद किस कलर का होगा, मैं कहूँगा स्ट्रोक ऐसे, उसका कलर क्या है आपका, ठीक है, ठीक, ये कलर बता रहा है कि कौन सा कलर आपको देना है, आप दे दो कोई सा कलर, मैंने ये दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तो स्ट्रोक फिलहाल सबका ये कलर लगेगा, लेकिन मुझे डिफरेंट कलर्स लगाने हैं यूजिंग द nth चाइल्ड, हम करेंगे वो। अच्छा, अब मैं इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या आ जाए, बॉक्स शेडो आ जाए, ताकि वो थोड़ा सा दिखे। अगर मैं बॉक्स शेडो करूँगा इस्तेमाल, तो देखते हैं क्या लगेगा इसमें बॉक्स शेडो या नहीं। मैं कहूँगा बॉक्स शेडो करो 10 पिक्सल्स की, ठीक है ना, उसके बाद आप करो 10 पिक्सल्स का, और करो फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, और मैं जब जाऊँगा यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि बॉक्स शेडो एलिमेंट पे लगती है, जिनका जैसे ये स्क्वायर है। ये जो एसवीजी आपका है, इट इज़ काइंड ऑफ ए पिक्चर में बॉक्स शेडोज ऐसे नहीं लगते। अगर आपको बॉक्स शेडो लगाना है वहाँ पे कंट्रोल कमांड से हमें ये उड़ाना है, ब्रैकेट नहीं उड़ाना है, तो अगर आपको बॉक्स शेडो लगाना है, शेडो जिसमें हम बैक बॉक्स शेडो लगाते हैं, तो हम पिक्चर्स के ऊपर फिल्टर करते हैं इस्तेमाल, न कि बॉक्स शेडो डायरेक्ट, ठीक है। फिल्टर में आप क्या करोगे काम, हमारे पास आता है ड्रॉप शेडो। क्या आता है, ड्रॉप शेडो में बिल्कुल वैसे ही कि 0 0 x 0 y 0 यानी कि चारों तरफ से घुमाओ। कितना घुमाओगे, फॉर एग्जांपल 6, चलो 10 पिक्सल का घुमाएंगे, फिर देखेंगे कितना होता है। 10 पिक्सल का घुमाओ, और आप अपना वेरिएबल दे सकते हो जो हमारा है ना वो वैर, वो तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। वैर तो काम, हमारे पास वैर था ना शायद, कि नहीं था, इसमें क्यों नहीं काम कर रहा वैर। सर आ रहा है, आप लिखिए। मुझे आ ही नहीं रहा यार, वैर तो आना चाहिए हमारे पास, वैर तो है, वैर मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है, इसको नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ था। नियॉन, देखो अब इसमें जो है नियॉन की वो शेडो लगी और बिल्कुल उसी सर्कल में लग गई। अब नियॉन मुझे दिख नहीं रहा कुछ, मैं वाइट कर दूंगा, ठीक है ना, मैं वाइट कर दूंगा फिलहाल, ठीक है। अब इसमें एक वो शेडो का काइंड आ गया, और क्योंकि पिक्चर है, तो पिक्चर है तो याद रखना है कि इसमें बॉक्स शेडो नहीं लगेगा, इसमें फिल्टर लगेगा, ठीक है। अगर 10 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है तो 6 पिक्सल दे दो, ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक दिखना चाहिए, ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, तभी अच्छा नहीं दिखेगा। इट्स लुकिंग नाइस ना, ओके, इट्स लुकिंग परफेक्ट। इवन आप क्या कर सकते हो काम, दूसरा कलर दे सकते हो। इफ़ यू वांट प्ले विद दिस, यू कैन पुट अप अगेन फिल्टर, फिर ड्रॉप शेडो कर दो, फिर 10 पिक्सल कर दो, और दूसरा कलर कर दो, वो दूसरा कलर दिखाएगा फिर, यानी कि दोनों कलर लग जाएंगे, वो भी हम कर सकते हैं। और मैं इसमें एनिमेशन चाहता हूँ, इस सर्कल की जो ये चीज़ है इसमें मैं एनिमेशन भी चाहता हूँ, ठीक है ना, आई वॉन्ट एनिमेटेड, सो आई विल से एनिमेशन, कुछ नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल सर्कल एनिमेशन, ओके, 2 सेकेंड्स का लगा लो, और लीनियर लगा लो,
और फॉरवर्ड्स है बैकवर्ड्स लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। वैसे इसमें बैकवर्ड्स भी मज़ा आएगा क्योंकि पीछे से घूमेगा फिर, तो फ़िलहाल फॉरवर्ड्स ही लगा लो। अच्छा जी, क्या बता रहे हैं आप इसका? अब जो इसकी एनिमेशन हम लगाएंगे, इससे पहले कि हम एनिमेशन लगाएंगे हमें दूसरों की कलर भी चेंज करने हैं ना। वी शुड चेंज द कलर्स ऑफ अदर्स, व्हाट डू यू से? क्योंकि जो हम इसमें एनिमेशन बाद में लगाएंगे, इन डिफरेंट, सबका सेम कलर नहीं होना चाहिए। जिस तरह डिफरेंट कलर था, इनका भी डिफरेंट कलर होना चाहिए, अदरवाइज़ ये गंदा दिखेगा। तो कैसे लगाऊंगा? दूसरों का कलर चेंज करूँगा। कलर किससे चेंज होगा? स्ट्रोक से, है ना? कलर किससे चेंज होगा? जो ये स्ट्रोक है। अब मुझे पहला का तो ये तो सबका लग गया, तो मतलब मानो मानो ये पहले का लग गया। अब दूसरा चाइल्ड में कैसे सिलेक्ट करूँगा? क्योंकि सर्कल बॉक्स सर्कल बॉक्स सर्कल बॉक्स सारे इस कंटेनर में है ना। हमारे पास स्टोरी है कि हमारे पास जो ये है स्किल्स राइट कंटेनर जो मेरे पास है, उसमें लाइन कंटेनर एक था, ठीक। उसके बाद जो स्किल, इसमें इसमें दो चीज़ें थी। जो मेरा मेन जो राइट कंटेनर मेरे पास है, उसमें स्किल लेफ्ट कंटेनर, स्किल राइट कंटेनर। राइट कंटेनर में दो चीज़ें हैं, एक स्किल लाइन कंटेनर है और स्किल सर्कल कंटेनर है। लाइन कंटेनर में हमने वो किया, वो ऊपर वाला किस्सा ये, ठीक। अब जो स्किल सर्कल कंटेनर है, उसमें बैठे हैं सर्कल बॉक्सेस। सर्कल बॉक्स 1, सर्कल बॉक्स 2, सर्कल बॉक्स 3, है ना। ये सारे सर्कल बॉक्सेस हैं। अगर मैं इनको बंद करूँगा, ये सारे सर्कल बॉक्सेस बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर्कल बॉक्स, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे बनाई, ये 3 चीज़ें, ठीक है ना। अब ये सर्कल बॉक्सेस चाइल्ड है, किसके चाइल्ड बच्चे हैं? स्किल सर्कल कंटेनर के। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा स्किल सर्कल कंटेनर है, मैं कहूँगा डॉट स्किल्स सर्कल कंटेनर जो है, उसमें जो डॉट सर्कल बॉक्स जो है, क्या है? सर्कल बॉक्स है। अब कौन सा बॉक्स चाहिए? उसका nth चाइल्ड हम करेंगे। nth चाइल्ड पढ़ा था ना, मैं बार बार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर आप अभी भी नहीं सीखोगे फिर कब सीखोगे? उसका जो सेकंड चाइल्ड है, क्योंकि पहले का लग गया ये कलर, जो सेकंड चाइल्ड है उसमें जो सर्कल है, क्योंकि किसका करना है? सर्कल का। क्योंकि किसका करना, किसका कलर चेंज है? सर्कल का, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरा स्किल सर्कल कंटेनर है, उसमें जो सर्कल बॉक्स है, और कौन सा वाला? दूसरा जो सर्कल बॉक्स है। यानी कि अब बात हो रही है इस सर्कल बॉक्स की, दूसरे वाले की। ये पहला वाला था, ये दूसरे वाले की, इसकी बात हो रही है, जिसका नीचे नाम है रिएक्ट JS, ठीक है। उसमें आप कलर चेंज कर लो। तो कैसे करोगे कलर चेंज, बताओ? सिंपल, स्ट्रोक कर लो, जो भी मर्जी है। मैं येलो करूँगा जल्दी से, ठीक है। नाउ आई विल कॉपी पेस्ट देम। आई विल से कमांड ऑप्शन डाउन, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये रहा चाइल्ड नंबर 3। फिलहाल आपके चाइल्ड नंबर 2 को येलो होगा, वो हुआ नहीं, तो कुछ गड़बड़ किया उसका मतलब है। मैं कह रहा हूँ जो डॉट स्किल्स सर्कल कंटेनर है, उसमें जो सर्कल बॉक्स है, उसका जो nth चाइल्ड 2 है, उसमें जो सर्कल है, तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती होने की। मेरा तो हो गया। इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है गलती की। 3 और 4 है। इसका फिलहाल मैं करूँगा ब्लू, ओके, और इसका करूँगा मैं रेड। कुछ गड़बड़ है, और ये कलर भी दिखा रहे हैं ना थोड़ा सा, मतलब क्यों गड़बड़ है यहाँ पे? डॉट स्किल्स में जो सर्कल कंटेनर है, जो स्किल्स में जो सर्कल कंटेनर है, उसका जो सर्कल का बॉक्स है, सर्कल बॉक्स है, ठीक है, सर्कल बॉक्स तो है हमारे पास। उसका जो nth चाइल्ड है, जो उसमें जो सर्कल है, उसको आप कर लो। ये तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा? हमने मैं सर्कल बॉक्स गलत लिखा है नाम उसका। मेरा सर बराबर है। ये तो आना चाहिए ना। एक मिनट, सर्कल बॉक्स में कौन और सा आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। सर्कल, स्किल सर्कल, कॉर्नर कुछ लिखा है इसलिए। कहाँ पे? हाँ ऊपर स्किल, ये नहीं नीचे। हाँ स्किल्स सर्कल कंटेनर, हाँ। उसमें सर्कल बॉक्स लिखा है ना, सीधे क्या लिखा है? स्पेलिंग गलत लिखी है ना। कंटेनर, सर कंटेनर स्पेलिंग अपनी CON
हाँ ये गलत है भाई, TAINER कंटेनर, ये गड़बड़ था। हाँ कंटेनर की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, अब ये हो गए, कलर्स आ गए इनके, आ गए भाई साहब। अब क्या करना है इनका, एनिमेशन। एनिमेशन मुझे बताओगे आप लोग, लेकिन ये सारे के सारे जो है ना, इसमें इसका 75% आ गया, इसका 80, ये सब 80% आ गया। हालांकि हमने लिखा इसमें 80 चेंज करना है हमें, ये 75 है तो ये 75 थोड़ी ना है, ये तो सेम ही है ना, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया ना, इसको चेंज करना है। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस उसी हिसाब से करनी है ना, 75% ऑफ वट एवर दैट वॉज 314, 314 आ रहा था हमारे पास फुल सर्कमफ्रेंस। यस उसका 80% हमने देखा था 251, तो वो हमने कर दिया। इस तरह हमें देखना है 75% ऑफ 314। देखो ना, ये करके दो ना मुझे कैलकुलेट, जो 2πr होती है ना सर्कमफ्रेंस की, सर्कमफ्रेंस कितनी रखनी है। अगर मेरा रेडियस 50 है, रेडियस 50 है, पाई इज़ 22/7 और आई कैन से 3.14 इंटू 2, 235 आता है सर, कितना आता है ये 235 पिक्सल। टोटल? यस सर, 75 का। हाँ नहीं 75% आता है 235, अच्छा 235 टोटल आता है Yes, sir. 75%। तो हमें करना चाहिए यहाँ पे जो फ्लेक्स बॉक्स सेकंड है, ये जो सर्कल बॉक्स सेकंड है ना ये वाला, इसमें जो ये सर्कल बॉक्स सेकंड हो गया यहाँ पे, इसमें स्किल्स SVG जो है उसका जो ये सर्कल है उसका स्ट्रोक जो है वो कितना मुझे करना पड़ेगा, 231, कितना बोला आपने, 235। 235, 75% ऑफ टोटल, तो थोड़ा सा कम हो गया आप ये। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कम करना है, 80% नहीं, जिससे 60% लिखेंगे या इसमें क्या लिखेंगे उस हिसाब से इसको कम कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना प्रॉपरली। ओके ठीक है, अब इनका एनिमेशन करना है हमें। तो एनिमेशन के लिए क्या करेंगे हम, बताओ फटाफट बताओ। एनिमेशन का नाम क्या पहले, @ शाबाश, @ की फ्रेम्स, और नाम क्या रखा था, सर्कल एनिमेशन, शायद सर्कल एनिमेशन। ठीक है 2 सेकेंड्स। हाँ जी बताओ कैसे दिखाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे ये दिखे ही पहले लाइन, पहले कुछ नहीं दिखनी चाहिए, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आनी चाहिए बर के। ठीक है, वो किस से दिखाएंगे हम, डैश ऑफसेट से या डैश एरे से? हाँ जी, ऑफसेट। so 0% and I got the 100%। जब 0% है हम कहेंगे कि भाई साहब जो स्ट्रोक का जो डैश ऑफसेट है उसको आप पूरा लगा लो, जितनी सर्कमफ्रेंस सर्कल है 340 था ना, 340 हम करेंगे पूरा, क्योंकि हमें नहीं पता आधों की 80% है आधों की 70%, मैं सारे का लगा रहा हूँ तो मैं फुल की बता रहा हूँ इसको। हाँ ठीक है, और जो स्ट्रोक ऑफसेट है फिर डैश ऑफसेट जो है वो फिर 0 कर दो, और इसमें लगेंगे 2 सेकेंड्स। तो अब जब हम यहाँ पे आएंगे और उसको रिलोड करेंगे तो हो क्या रहा है, हाँ अब असल में एनिमेशन अलग अलग करनी है, क्योंकि ये क्योंकि मैं इसको बोल रहा हूँ कि पहले फुल, मैं इसको फुल पे ले रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे, इनिशियली 0, फिर 300 कितना 40 था, 340 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, ना इट लुक्स लाइक दैट, बट नो पहले हमें करना चाहिए यहाँ पे 340, क्योंकि वरना, चलो फुल से ही शुरू करें लेकिन बाद में 0। ठीक है, नाउ जब भी हम इसमें रिलोड करेंगे इट्स लुकिंग लाइक वी आर रिलोडिंग। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हम काम करेंगे लास्ट वाला इसमें वो ये कि, बट इसमें आप, मैंने आपको कल बहुत सारी चीज़ें दी थी, पता नहीं आप कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एक डॉट चाहिए, अब क्या चाहिए, मुझे एक डॉट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वो चमकता हुआ डॉट, जब ये एनिमेट करेगा ये डॉट भी मूव करना चाहिए, फिर आना चाहिए वापस यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, उसके लिए मैंने
मैं सर्कल का आफ्टर या बिफोर नहीं कर सकता। जो सर्कल मेरा है ये ऑलरेडी इसी का मैं आफ्टर करता, बिफोर करता, उसको मैं फिर रेडियस 50% करता और मैं इसका गोल बनाता, लेकिन वो नहीं कर सकता। इसलिए हमने क्या काम किया, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा डिव रखा यहाँ पे। अगर आपको याद है, मैंने यहाँ पे एक डॉट नाम का डिव रखा। ये आपको सब में करना है और ये आपकी होमवर्क रहेगी, मैं एक का दिखाऊंगा। ठीक है, ये सर्कल बॉक्स हो गया पहला वाला। हाँ जी, सर्कल बॉक्स खोले तो यहाँ ये डॉट बैठा है एसवीजी के ऊपर। ठीक है ना, ये जो डॉट है इसके ऊपर हम आप काम करेंगे। जो डॉट मेरा बैठा है कहाँ, एसवीजी के ऊपर। ये जो डॉट है क्या, ये डॉट है क्या, ये डिव। ये डॉट जो है ये डिव है, मगर हम इस डिव को हमें बनाना है गोल, जो कि सर्कल के साथ एनिमेट करेगा। लेकिन अगर ये मैं करूँगा सारा, फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। आप मुझे बताओ, यू शुड बी टेलिंग मी what I am doing. Okay, let's go to the script and start style and start doing with the dot. Now animating the dot, I say dot dot. ठीक है, मैं क्या काम करूँगा, पहले मैं एक बॉक्स बना दूंगा, इसके ऊपर बिठाऊंगा। मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, वो मैं इसके ऊपर बिठाऊंगा। ठीक है, फिर उसका आफ्टर या बिफोर करके एक डॉट बनाएंगे उस बॉक्स पे, क्योंकि मुझे बॉक्स बिल्कुल मैच करवाना है इस सर्कल के साथ। मैं समझाता हूँ, ये डॉट है। ठीक है, चूँकि डॉट है तो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे हम। इसकी पोजीशन क्या रखेंगे हम, एब्सोल्यूट। और जो वो मैंने रखा था रिलेटिव, ताकि ये वहीं पे घूमे। ठीक है ना। अच्छा, इसका ये ऊपर रखना है मुझे। जेड इंडेक्स का क्या रखेंगे, बिल्कुल ज़्यादा जितना भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 रखेंगे। फिलहाल तो हमने किसी का इतना जेड इंडेक्स नहीं रखा यहाँ पे। ठीक है ना। और इसको हम एनिमेशन देंगे, इस डॉट की हम एनिमेशन देंगे। हम इसको एनिमेशन देंगे, फॉर एग्जांपल उसका रखूँगा मैं डॉट एनिमेशन। ठीक है, ये हम देंगे 2 सेकेंड्स का, जितना वो था उसका भी यही देंगे, लीनियर देंगे और फॉरवर्ड्स। ठीक है, और इसका साइज़ जो है ना, फिलहाल मैं इसका इंसर्ट करूँगा 0 0। देख खुद लेगा, ये 0 से मैं इंसर्ट लूँगा तो ये खुद साइज़ लेगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर है नहीं कुछ। तो इसका बैकग्राउंड कलर फिलहाल देंगे हम, बाद में वो हटाएंगे हम देखने के लिए कि है क्या बंदा हमारा। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल रेड रख रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो ये बॉक्स बैठेगा, तो बैठा ही नहीं, ये तो बैठना चाहिए था। अगर मैं इसको 2 पिक्सल दे रहा हूँ अभी, 2 पिक्सल्स, उसका मतलब है कि ये रिलेटिव लगा नहीं है, ये बैठा, ये चला गया होगा कहीं ऊपर। देखो ये कहाँ पर बैठा है, ऊपर, क्योंकि वो रिलेटिव नहीं था। जब रिलेटिव नहीं था तो ये यहाँ पे आ गया है और इसने 100% ऑफ दिस ले लिया है। जो रेड हमें बनाना है इसमें, जो हमारा कौन है, जो हमारा इसका सर्कल बॉक्स नहीं, इसका पेरेंट कौन है, पहले देखना पड़ेगा इसका पेरेंट कौन है। आपने ये इसकी पोजीशन कर दी है सर्कल, इसमें सर्कल बॉक्स सर्कल में इसका ये रिलेटिव कर दिया आपने। हाँ, लेकिन ये तो सर्कल में है नहीं, है ना। ये सर्कल बॉक्स में है ना। हाँ, ये ऊपर लिखना है। ये क्या सर्कल बॉक्स, नहीं सर्कल बॉक्स के अंदर है ना, ये सर्कल बॉक्स के अंदर है ना। हाँ। देखते हैं, एक मिनट, सर्कल बॉक्स के अंदर है ना, ये सर्कल बॉक्स है। तो जो ये क्लास डॉट है ये इस सर्कल बॉक्स के अंदर है। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि इसका पापा कौन है, सर्कल बॉक्स। तो सर्कल बॉक्स तो मैंने पोजीशन रिलेटिव बना दी। इसको क्या हो गया फिर, एक मिनट, स्टाइल, जो सर्कल बॉक्स है, नहीं मैंने इस सर्कल को बना दिया रिलेटिव। मैंने सर्कल को बनाया आपने, कमांड एक्स। मुझे किसको बनाना है, सर्कल बॉक्स को, इसको, इसके पापा को रिलेटिव बनाना है ना। और खुद जब ये एब्सोल्यूट होगा, जब इसकी खुद की पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो ये किधर आएगा, ये आएगा सर्कल बॉक्स। जितना बिल्कुल जो सर्कल बॉक्स का साइज़ जो है ना, इसका भी उतना ही साइज़ है। सर्कल बॉक्स का जो है 150 का जो हमने बनाया था वो ये वो ले रहा है, लेकिन सर्कल इससे छोटा है। पहले मैं वो डॉट बनाता हूँ, पहले मैं वो जो गोल है ना वो बनाता हूँ मैं इस डॉट का, जो डॉट जो मैंने अभी बनाया, जो अभी बन गया, ये समझ में आ गया। ये एब्सोल्यूट वो रिलेटिव तो कहाँ पे आ गए, है ना। क्योंकि अगर आपने इसको एब्सोल्यूट कहा, इसके पापा को रिलेटिव नहीं कहा, तो ये चला जाएगा टॉप ऑफ द स्क्रीन, जो 0 0 टॉप ऑफ स्क्रीन है ना। लेकिन जब इसके पापा रिलेटिव है
तो ये अपने पापा के अंदर ही रहेगा, उसकी गोदी में ही रहेगा, उस उधर ही घूमेगा कहीं से। और चूंकि मैंने कहा इनसेट, यानी कि मैंने क्या कहा इसके, मैंने कहा लेफ्ट 2 पिक्सल, राइट 2 पिक्सल, बॉटम 2 पिक्सल एंड ऑल। इनसेट मीन्स ऑल इन वन, राइट, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, मैंने 2 पिक्सल क्या, यानी कि जो इसका पापा है उसका 2 पिक्सल अंदर है ये, ठीक है ना। मैं इसका अगर मुझे साइड छोटा करना है ना, तो बता मुझे साइज अगर मुझे छोटा करना है यूजिंग इनसेट, व्हाट शुड आई डू? अगर मैं इसको कहूँगा 12 पिक्सल्स, ये छोटा हो जाएगा। क्यों? अब इसका पापा जो है, इसका पापा कौन है बताओ जल्दी फटाफट, इसका पेरेंट कौन है? आई मीन टू से दैट इसका पेरेंट है सर्कल बॉक्स। शाबाश बेटा, सब बोलो। मैं अब सर्कल, ये सर्कल बॉक्स है, मैं कह रहा हूँ इसका इनसेट, यानी कि इसका टॉप, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका बॉटम, कुल मिला के सब मैं करूँगा 12 पिक्सल, यानी कि 12 पिक्सल ही शुरू करेगा, 12 पिक्सल अंदर इसका टॉप, इसका लेफ्ट, यानी कि उसका मतलब है कि ये 12 पिक्सल इससे कम होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं कहूँगा 20 पिक्सल, तो ये गैप 20 पिक्सल है, 20 पिक्सल और अंदर जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ कहूँगा भाई साहब आप 20 पिक्सल इसका इंसर्ट कर दो, तो ये और छोटा होगा, क्योंकि अपने बॉक्स से 20 पिक्सल्स टॉप लेफ्ट ले रहा है, शुरू कर रहा है अपना, ठीक है ना। तो मुझे हाइट एंड विड्थ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं इसको एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको छोड़ देता यहाँ पे 0 करता, जो भी इसका पापा था ये उसका फुल स्पेस लेता, है ना। जब एब्सोल्यूट आप कहते हो वो पूरी स्पेस लेता है। फिर अगर आप हाइट और विड्थ कहोगे तो वो उतनी ही लेगा जितनी आप बोलोगे, लेकिन अगर आप हाइट छोड़ोगे लेकिन इनसेट कहोगे कि टॉप शुरू कहाँ से करना है, बस फिर वो फुल लेगा अपने पापा की, जो भी उसका पेरेंट होगा उसकी विड्थ। इसलिए रेड बॉक्स ऊपर फुल आ गया था। अच्छा जी, अब डॉट का जो मैं करूँगा बिफोर करके, क्या कहूँगा? बिफोर। मैं डॉट का बिफोर करके करूँगा काम। यहाँ पे क्या कहूँगा? पहले बिफोर जब किया तो कंटेंट करना पड़ेगा। यार मुझे इस बाजू में खुजली आ गई और बस कपड़े टाइट है। ओके, कंटेंट ठीक है। पोजीशन क्या करेंगे इसकी? पोजीशन हैज़ टू बी एब्सोल्यूट, राइट, सो दैट इट विल मूव अराउंड ना, वरना मूव मत करेगा ये, एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। इसकी विड्थ और इसकी हाइट 20 पिक्सल कर देंगे, फिर देखेंगे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि छोटा मुझे रखना है, छोटा 20 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर कुछ दे दो बैकग्राउंड कलर कौन सा? वो वेयर देंगे हमारा, ठीक है, नियॉन देखेंगे, ऐसा लगेगा, क्योंकि हमें बॉक्स तो चाहिए नहीं, खाली ये डॉट का जो बिफोर है ना, खाली ये चाहिए हमें। फिलहाल अगर आप देखेंगे अभी लगा होगा, ये लग गया ना, ये 0 0 पे लग गया, ठीक है, ये 0 0 पे लग गया। पहले इसका बॉर्डर रेडियस करेंगे हम, इसको मैं हटा दूंगा, 1 मिनट। ये भी चकोर है, तो चकोर को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? इस चकोर को चांद बनाने के लिए क्या करेंगे हम चांद नवाब को बुलाएंगे पाकिस्तान से। बॉर्डर रेडियस, ये रहा आपका चांद नवाब। कितना करेंगे बॉर्डर रेडियस? 50%, तो बन गया गोल, ठीक है ना। अब ये गोल लेकिन कहाँ पे आना चाहिए? सर्कल पे आना चाहिए पाजी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा सर्कल पे है कि नहीं? जो ये बंदा है ना, ये बैकग्राउंड कलर मेरे को चाहिए ही नहीं, इसको बंद कर दो, ठीक है। बचा कौन? बचा उस डॉट का बिफोर ओनली, जो डॉट है, ये जो डॉट था उसका बिफोर जो हमने किया 20 पिक्सल का जो नियॉन का बनाया वो बचा, और इसको गायब कर दिया हमने, इसका बैकग्राउंड रखा ही नहीं, तो वो किस लिए है? ये सिर्फ मुझे कंटेनर चाहिए था ताकि मुझे दिखे कहाँ पर है। लेकिन अब इसको सर्कल को नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा? इसका जो ये बॉक्स है, ये जो बैकग्राउंड वाला ये जो बॉक्स है ना, ये जो रेड कलर का मैंने रखा था, इसको मैं और कम कर दूंगा, से फॉर एग्जाम्पल 22 पिक्सल। देखेंगे अभी भी नहीं आ रहा, और छोटा कर दो, 25 पिक्सल करो, अभी भी नहीं आ रहा, 27 पिक्सल कर दो, मुझे लगता है आएगा। एक और पिक्सल कर लेंगे, 28 पिक्सल, तो अब 28 पिक्सल पे ये आ गया, ठीक है। फिलहाल ये आ रहा है ना इस पर, लेकिन अब इसको देखो, जो ये चीज़ थी ये थी, ये असल में जो मैंने ये बनाया था, जो मैंने डॉट बनाया, जो डिव था, ये वो डिव था जो मैंने यहाँ पे है ना, ये है यहाँ पे, ठीक, ये इस पर लग गया, इसके ऊपर यहाँ पे। लेकिन अब मुझे ये आगे लाना है यहाँ पे, ताकि ये इधर लगे, आगे, इसके आगे लगे। उसके लिए क्या करूँगा मैं? ये जो खुद जो बिफोर वाला जो डॉट है उसका लेफ्ट एंड टॉप और कुछ इसको आगे लगाते हैं ना, तो बोलो क्या करेंगे?
आगे लगाने के लिए लेफ्ट करेंगे ना इंक्रीज, लेफ्ट विल भी इंक्रीज करते लिपक नहीं ओकुन से 40% में इंक्रीज करता हूँ, देखते हैं कहाँ हो जाता है। एक मिनट, इसको एक काम करेंगे हम, इसको जो हम एक काम करेंगे इसका बैकग्राउंड पहले ख़त्म करेंगे वरना हमें दिखेगा नहीं। जो बैकग्राउंड है ना वो उसका डॉट का वो ख़त्म करेंगे। हाँ, और आगे चलाना है फिर ऊपर कराना है, यानी कि पहले मैं इसको साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ 22 का। हाँ, साइज़ इंक्रीज़ करने से जाएगा ना ऊपर। ओके, अब इसमें 50% मैंने रखा था इसको ये आगे और आगे चलाना है, तो अगर और आगे चलाऊंगा तो क्या कैसे चलाऊंगा आगे बताओ कोई। सो आई हैव टू इंक्रीज द लेफ्ट, लेट इट बी 56%। और इसका लेफ्ट मैंने क्या किया है, मैंने बॉर्डर एडिस किया है, मैंने क्या कर रहा हूँ ये, मैंने इसको क्यों नहीं हो रहा है। आई शुड नॉट डू दिस, आई शुड डू दिस 56% लेफ्ट इंक्रीज। मेरा ख्याल है परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसका टॉप ऊपर करना पड़ेगा। मैं इसका टॉप करूँगा -5 पिक्सल्स का, देखते हैं गलत किया मैंने, टॉप कोलन -5 पिक्सल्स टर्मिनेटर, टॉप थोड़ा सा ऊपर लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल आप परफेक्ट है, आप क्या बोल रहे हो। अब इसमें एक चीज़ मिस है, व्हाट इज़ दैट, इसका बॉक्स शैडो, इसकी बॉक्स शैडो होनी चाहिए। आई शुड से बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल, से फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल 5 पिक्सल रखते हैं, ज़्यादा नहीं, और दे दो वाइट ही देता हूँ मैं, लेट इट बी वाइट। ठीक है, आ गया। और हम क्या कर सकते हैं, हम दो, हम ये ज़रूरी नहीं कि एक ही दोगे आप, हम दो सकते हैं, हम कामा करके इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई साहब 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल करेंगे, इसका 5 पिक्सल 5 पिक्सल, और मैं करूँगा वैर वो ना नियॉन वाला। ठीक है, we can use any many box shadows, keep that thing in mind. So I can use another one, so white के ऊपर फिर लगेगा दूसरा वो उसका neon का, so you can use multiple colors if you want, make it rainbow, you can put away rainbow colors there। ठीक है, different colors के, लेकिन अब इसकी एनिमेशन से सेम होनी चाहिए ना जो उसका है, जैसे वो घूम रहा था। तो एनिमेशन के लिए मैंने क्या बताया इसका, ये कमांड C, तो आई कैन से @ keyframes, कमांड V, एनिमेशन। अब 0% पे हम क्या करेंगे काम, और हम 100% पे क्या करेंगे काम, बोलो कोई, खुश हो जाऊंगा मैं। डैश ऑफसेट इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, ये थोड़ी ना सर्कल है। ये थोड़ी सर्कल है, ये जो डिव है भाई, ये जो डॉट हमने बनाया है डिव का बिफोर बनाया हमने, ये यानी कि ये भी डिव ही है, वो सर्कल का ऑफसेट ये होता है, डैश ऑफसेट एंड ये चीज़ नहीं होता, ये बेसिकली है आपका ये आपका डिव है। मैं एक चीज़ करूँगा काम, मैं इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट कराऊंगा। जो डिव है उसका रोटेशन आता है ट्रांसफॉर्म रोटेट ना, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांसफॉर्म रोटेट, वो चीज़ें होती है ना इसमें, ये थोड़ी ना सर्कल है। तो मैं इसको क्या कहूँगा काम, मैं कहूँगा इसको कि 0% पे तू ट्रांसफॉर्म, और तू क्या काम कर, ट्रांसफॉर्म में क्या कर, रोटेट कर, रोटेट, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा मतलब विद प्रिसिशन एंड ऑल। तो फिलहाल हम ऐसे करेंगे ताकि हमें एक ट्रांसफॉर्म, एक बात याद रखें, हम कोई प्रोफेशनल काइंड ऑफ ये नहीं बना रहे भाई, हम सीख रहे हैं खाली। प्रोफेशनल जो चीज़ें होती हैं वो बाद में होती हैं दूसरी चीज़ों से, वहाँ हम खुद की चीज़ें कम करते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमें होती है वहाँ पे। सो व्हाट शुड आई कैलकुलेट, आई शुड से डायरेक्टली 360 डिग्री, लेट इट बी फुल मोशन, और दो सेकेंड तो लगे ही हैं इसको, तो वो तकरीबन सेम ही लगेगा। थोड़ा सा इसमें मिसमैच आ रहा है ना क्योंकि हमने वो सर्कल भी जो है ना डैश ऑफ सर्कल, वो पूरा उसको बोलना पूरा रोटेट करो, उसको भी पूरा असल में ये नहीं करना था, उसमें भी वो जो डैश ऑफ हमने दिया ना, हमने पूरे 360 का दिया था, हमें वो पूरा 360 नहीं देना था, इसलिए वो यहाँ से भी आ रहा है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ठीक है, फिर भी काइंड ऑफ एनिमेशन। नाउ योर जॉब इज़ टू डू सेम थिंग
this dot with the other guys also. Reload. Still looking pretty. Okay, so kind of आपके पास आ रहा है, तो आपके पास progresses ही हैं, और ये border shoulder हटाने हैं सारे. ठीक है. Okay, hopefully I think it's 10:33. I have to stop, and tomorrow we'll start building this right section, and I will start building the projects and contact. This is I'm telling you, there are projects in every section we are learning different stuff, and if you're not practicing, then it will be wastage of time, because we are taking, I'm teaching each and every thing like box shadows and this thing and very nitty gritties of everything. Okay, यहाँ पे circumference पे आ गए हम, कैसे कैलकुलेट करना एंड ऑल दैट. सो यानी कि बहुत सारी स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो उसकी बात नहीं बनेगी. ठीक है ना. ओके, चलिए फिर. ठीक है. एनी क्वेश्चंस?